गुड इवनिंग इंडिया। गुड इवनिंग इंडिया के इस खास अंक में मैं सत्यप्रिया गुड इवनिंग इंडिया की पूरी टीम की ओर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। 7 अप्रैल का यह दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 2017 इसलिए खास है क्योंकि आज का यह दिन WHO की डिप्रेशन लेट्स टॉक इस थीम पर मनाया जा रहा है। और आज गुड इवनिंग इंडिया के इस खास अंक में हम बात करेंगे इसी सब्जेक्ट पर, डिप्रेशन लेट्स टॉक। डिप्रेशन की अगर बात करें और अगर आंकड़ों को देखें तो ये माना जाता है कि आज दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ लोग डिप्रेशन से प्रभावित हैं, जिनमें से लगभग 5 करोड़ लोग एकमात्र भारत में ही हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो 2005 से 2015 यानी एक दशक का समय, इस एक दशक के समय में डिप्रेशन से प्रभावित लोगों की संख्या में लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है। हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स में कई ऐसे लोग हैं जो आज डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन की खास बात यह है कि ये किसी को भी हो सकता है। अगर आप देखें तो डिप्रेशन जहां महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब किसी को भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, मगर अगर लक्षण देखे जाएं तो लगभग सभी डिप्रेशन के बीमारियों में लक्षण एक जैसे ही होते हैं। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे बचा जा सकता है और क्या डिप्रेशन का इलाज संभव है, आज हम बात करेंगे इसी विषय में। बातचीत शुरू करने से पहले डिप्रेशन क्या है देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। Depressive disorder is different from just any sadness that comes from disappointment or sorrow. The word disorder means an abnormal physical or mental condition. Patients suffering from depressive disorder or depression are in a longer state of sadness than normal, to the point that it disrupts normal daily activities because of symptoms like insomnia, inability to focus, lack of appetite, complete loss of interest. Everything just seems terrible. Depression can come from many different causes like genetics and chemical imbalances in the brain, but it's most often triggered by a traumatic event like the loss of a loved one or personal failure. Just because someone is suffering from depression, it doesn't mean that they are weak, give up easily, or are unwilling to tackle a problem. But due to the illness that has occurred to their mental state, it means that they are not ready to face the issue. It's like being in a pitch dark room and no matter where they turn, they just can't see the exit. But with proper help and supportive peers, it's like there's a helping hand in turning on the light, which guides them to solving their problem on their own and returning to their regular lives. Many of you are probably wondering if perhaps you fall into this category too. Let's see if within the last 2 weeks you have experienced any of the following symptoms. 1. Feelings of discouragement, sadness, or despair. 2. Complete loss of interest in activities or hobbies. 3. Loss of appetite or extreme overeating. 4. Insomnia or excessive sleeping. 5. Feelings of anxiousness, restlessness, or complete lack of motivation. 6. Fatigue, easily decreased energy. 7. Feelings of worthlessness and disappointment in oneself. 8. Lack of concentration, focus, memory retention, and inability to make decisions. 9. Suicidal thoughts. If you have experienced more than 5 of these symptoms almost every day within the past 2 weeks, it could mean that you are at risk of having depressive disorder. But before diagnosing yourself with depression, you should consult a psychiatrist who can offer you their professional opinion after conducting a detailed analysis. Seeing a psychiatrist or psychologist isn't unusual or something to be ashamed of. It's an incorrect assumption that those who seek mental health professionals are insane. In reality, those that are suffering from stress or complex issues with no one to confide in can also consult a psychiatrist or psychologist. Mental disorders are exactly like physical disorders that require specific consultation.
It's the same as if your teeth hurt that you see a dentist or your knee hurts that you see an orthopedist. डिप्रेशन के विषय पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक पैनल, जिनमें कई डॉक्टर और एक योग गुरु भी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आपसे परिचय करा दूं हमारे एक्सपर्ट्स का। मेरे दाहिने तरफ बैठी हुई हैं डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रोफेसर हैं और हेड हैं यूनिट न्यूरोलॉजी की ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। मेरे बाएं तरफ शिखर भारद्वाज हैं जो योग गुरु हैं और फाउंडर हैं योगा माय वे संस्थान के। और मेरी बाईं तरफ आप देख सकते हैं डॉक्टर निमिषा कुमार हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजी पढ़ाती हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। और साथ ही कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजेश सागर जो साइकेट्रिस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है एक बड़ी ही यंग एनर्जेटिक ऑडियंस जिनके पास कई सवाल हैं, जो अपनी राय हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। ऑडियंस का भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों से स्वागत करते हैं सभी लोगों का। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर निमिषा आपसे। जब आप डिप्रेशन के पेशेंट से बात करती हैं तो साइकोथेरेपी का डिप्रेशन में क्या रोल है, किस तरह से साइकोथेरेपी काम आती है? जी पहले तो सबको बहुत शुभकामनाएं वर्ल्ड हेल्थ डे पे एंड दूरदर्शन को भी इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम करने के लिए। जहाँ तक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की बात है, साइकोथेरेपी या टॉकिंग थेरेपीज जिन्हें कहते हैं, सो बेसिकली ये फेस टू फेस ट्रीटमेंट होता है जब एक तरफ पेशेंट या जो सफ़र कर रहा है और एक तरफ साइकोथेरेपिस्ट। एंड बेसिकली जो साइकोथेरेपीज हैं वो बातचीत के द्वारा थ्रू टॉकिंग वी ट्राई एंड कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। सो जहाँ तक डिप्रेशन की बात है, डिप्रेशन में ज़्यादातर जो साइकोथेरेपी वर्ल्ड वाइड काफ़ी इफेक्टिव है दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT एज इट इज़ कॉल्ड, और कॉग्निटिव थेरेपी। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि जैसे हमारे लाइफ में जो भी इवेंट्स होते हैं, द वे वी इंटरप्रेट देम और द मीनिंग दैट वी डिराइव आउट ऑफ देम, जिस तरह से हम उनको समझते हैं उस तरह से ही हमारा इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शन होता है। सो साइकोथेरेपी में हम तीनों चीज़ें असेस करते हैं। इंसान की थिंकिंग, जैसे डिप्रेस्ड जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग उनकी रहती है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। और दूसरी तरफ उनकी इमोशनल रिएक्शंस होते हैं जैसे दुखी रहना, सैड रहना, रोना, और एक तरफ उनके बिहेवियरल रिएक्शंस रहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का हम असेसमेंट करते हैं एंड थेरेपी के द्वारा इवन हम फैमिली को भी इन्वॉल्व करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि इंसान उस डिप्रेशन से बाहर आ सके जल्दी से जल्दी। विदिन 3 to 6 वीक्स हम लोग कोशिश करते हैं। जब आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात करती हैं तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो क्या रिएक्शंस जो हैं कहीं ना कहीं उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से गाइडेड या पास्ट एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होते हैं? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड जब मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की बात की तो इंटरप्रिटेशन कि आपने मीनिंग क्या डिराइव किया, और ये मीनिंग जैसे हमारा दिमाग एक आप मान लीजिए फिल्टर है, तो ये फिल्टर या बिलीफ सिस्टम हमारे बचपन से बनते आ रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस के द्वारा जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारी लाइफ में, उन्होंने जो हमें कुछ बताया है और हमने जो एक्सपीरियंस किया है, तो इस फिल्टर के द्वारा जो पास होता है वो हमारा रिएक्शन होता है। हर इंसान का फिल्टर अलग है क्योंकि हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है, उनके एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, इसलिए रिएक्शन भी फ़र्क होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनका असेसमेंट करें कि बचपन से उनकी किस तरह की थिंकिंग डेवलप हुई है और वो हर इवेंट को किस तरह इवैल्यूएट करते हैं या किस तरह उसको समझते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करें, डॉक्टर पद्मा आपसे पूछना चाहूँगी, माइंड बॉडी रिएक्शन जो है या माइंड बॉडी का जो आपस में तालमेल है उसके बारे में हम बहुत बात करते आए हैं। तो क्या डिप्रेशन कई बार किसी और बीमारी की वजह से भी होता है, या क्या ऐसा भी होता है कि किसी और बीमारी में बढ़त होती है डिप्रेशन की वजह से? Absolutely, I think it's fantastic question. न्यूरोलॉजिस्ट की जो रोल है इसमें, you really very succinctly put it, depression can be a reaction to a disease. क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको हेड इंजरी बता दूंगी, स्ट्रोक कह सकते हैं, एनसेफेलाइटिस, ब्रेन फीवर्स, जो भी है।
आपको एक इंसल्ट हो गया, एक बीमारी हो गया, और ऑब्वियसली एक ये दिस इज नो रॉकेट साइंस, हमारे रिएक्शन वी डू फील लो, वी फील डिप्रेस्ड. सो बियॉन्ड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमा डिप्रेशन, ये है. दूसरा है और भी इम्पॉर्टेंट है कि डिप्रेशन इज पार्ट ऑफ द डिसीज. जो लोग जो शुरुआत करते एक बिहेवियर प्रॉब्लम से, 16-year-old गर्ल है जो पहले बहुत हंसमुख थी, अब जो बहुत विड्रॉन हो गया, जो पहले इंटरेस्ट लेती थी, पहले जिस चीज़ में खुशी होती थी अब हो नहीं रहा, देन पीपल विल फर्स्ट थिंक कि इनको कुछ डिप्रेशन हो गया, दे फर्स्ट गो टू साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट और साइकोएनालिसिस. उसके बाद इवॉल्व होता है कि दौरे भी पड़ने लगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम हो गया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो गया, ये वाला बीमारियां हो गया. इनफैक्ट देयर इज समथिंग व्हिच इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड कॉल्ड ऑटो इम्यून एन्सेफेलाइटिस. इट्स बिकम वेरी कॉमन, seen in very young people as well. तो इसमें डिप्रेशन इज अ हार्बिंजर, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिसीज, सो वी शुड बी अवेयर. एंड ये नहीं कि उनको हम जस्ट बिहेवियर थेरेपी करें या डिप्रेशन की दवाई खिलाते रहे व्हेन एक्चुअली देयर इज समथिंग एल्स डेवलपिंग इन द ब्रेन. द थर्ड इज जो मेडिसिन हम देते हैं, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गया, एक डिसीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डिसीज मॉडिफाइंग थेरेपी में काफ़ी सारे मेडिसिन होते हैं. वेरी कॉमन एपिलेप्सी, दौरे की दवाई देते, वो दवाई की वजह से डिप्रेशन भी है. इट्स इन फैक्ट वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स, वो डिप्रेशन होता है. एंड द लास्ट एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लोग जो डिप्रेस्ड है वो नहीं आके कहेंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, दे विल कम विद अ सोमा प्रॉब्लम, अ बॉडी प्रॉब्लम, वो रिफ्लेक्शन है. तो दे विल कम विद द मोस्ट कॉमन थिंग इज पेन सिंड्रोम एंड द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट इज हेडेक. So in fact it is said कि headache is the commonest complaint of mankind. I don't know, animals also must be having it, but in fact they say कि जिसको सिर है उनको सिर दर्द होगा ही. तो सिर दर्द is the commonest complaint. उसमें almost 3/4 of the problem is not body, not head. It is actually your psychological upheaval. तो there is pain syndromes, इधर दर्द उधर दर्द, मैं fatigue हो गया हूँ, lethargy है, I don't feel okay. All this is not a body problem, but it is a sign of a depression. So जो neurologist या clinician के पास ये सारे चीज़ें खड़े हो जाते हैं when you talk about a depression, that's a very important question to differentiate. And of course you may tell me to shut up, but then the mind brain जो reactions जो आपका mind body reaction, it is actually a changing landscape preceding horizons. The more we are learning, and I'm sure even Yoga Guru, even he will tell you the same, you know, it is an imbalance, there's a disequilibrium. So there's nothing like pure psych, pure mind, pure body. It's all becoming a big spectrum. So I think whatever they say it's all in your mind probably is not true. It is an interplay of lot of chemicals in the brain, and we're getting increased scientific evidence to that. जैसा अभी डॉक्टर पद्मा ने कहा कि मेडिकेशन तो एक चीज़ है ही, उसके अलावा हम बातचीत से भी इस बीमारी के तह तक पहुंच सकते हैं. पर शिखर, आपका क्या मानना है, योग इसमें कितना लाभदायक है? देखिए सत्या जी, सबसे पहले आपने जो शुरुआत करी इस डिस्कशन की, आपने एक बात बोली कि डिप्रेशन के आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हम लोगों को, और ये कितना ज़्यादा बढ़ चुका है. डिप्रेशन पहले नहीं था क्या? लोगों को पहले भी डिप्रेशन हुआ करता था, पुरानी जनरेशंस भी डिप्रेशन के थ्रू गुजरती थी, पर आज इसका एक विकराल रूप हमें देखने को मिल रहा है, जितना हमें कभी देखने को नहीं मिला. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, माइंड सेम है, सारी फिजिकल बॉडी हमारी सेम है, पर ऐसा क्या हुआ चेंज कि आज के टाइम में डिप्रेशन इतना बढ़ गया है. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा करंट फास्ट लाइफस्टाइल. जिस लाइफस्टाइल के अंदर आपको इंस्टेंट नूडल्स मिल जाए, इंस्टेंट कॉफ़ी मिल जाए, इंस्टेंट फूड मिल जाए, हर चीज़ इंस्टेंट मिल जाए, वहाँ पे आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस भी चाहिए. और वो इंस्टेंट हैप्पीनेस अगर आप लेने का ट्राई करते हो, जैसे डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट करा अभी, इक्विलिब्रियम, यानी अगर आपको इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए विदाउट प्रॉपर बेस, तो आप क्या करोगे? आप सीधे गए फेसबुक पे गए, अच्छा सा अपना पिक्चर क्लिक करा, फेसबुक पे डाल दिया, आपको कमेंट्स मिलने स्टार्ट हुए, लाइक मिलने स्टार्ट हुए, आपको एकदम से हैप्पीनेस मिली है. ओके फाइन, यू नो यू आर गेटिंग अप्रूवल, एक हैप्पीनेस मिली आपको. और वो हैप्पीनेस इतनी टेम्प्रेरी है कि 3 घंटे बाद आपके किसी फ्रेंड ने एक अच्छा और पिक्चर डाल दिया, उसको ज़्यादा कमेंट मिल गए, ज़्यादा लाइक्स मिल गए, तो आपको डिप्रेशन हो गया, अरे यार ये क्या हो गया, आप और सैडनेस में चले गए. तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम स्टेट ऑफ हाई का जो काउंटर इफेक्ट है वो है डिप्रेशन, वो भी काउंटर इफेक्ट है. इसी के तहत जैसे आप 5 दिन आपने काम करा, 2 दिन आपको वीकेंड के मिले, आपको लगता है 2 दिन मिले अब तो मैं इतना हैप्पी रहूँगा, इतना खुश रहूँगा, पार्टीज़ में जाऊँगा, एंड यू गो फॉर इट, यू नो, यू गो फॉर पार्टीज, सब कुछ करने के बाद, और आपको अच्छा लगता भी है, यू रीच द स्टेट ऑफ हाई. पर मंडे मॉर्निंग में क्या होता है? तो अगेन वही डिप्रेशन,
माइल्ड डिप्रेशन, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। इनफैक्ट इसका एक वर्ड भी बन गया मंडे ब्लूज करके। आप गूगल में टाइप मंडे करोगे तो ब्लूज ऑटोमेटिकली सजेशन दे देगा गूगल आपको, इतना इसका वो बन गया है। क्यों? क्योंकि आपने सैटरडे संडे तो आपने अच्छे से अपने यू रीच दैट स्टेट ऑफ हाई, बट दैट वाज सो टेम्पररी एंड सो फास्ट कि उसका काउंटर इफेक्ट आपको मंडे को देखने को मिला। और आज के जनरेशन में एक और भी प्रॉब्लम चल रही है अल्कोहलिज्म की और ड्रग्स की। इसकी एक भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि मैं तो काफ़ी लोगों को डील करता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो जब भी आपको एक इमीडिएट स्टेट ऑफ हाई चाहिए होता है, यू टेक योर ड्रग्स। यानी जो स्टेट ऑफ हाई हमारे साधु ऋषि सालों साल लगा देते थे, उनको जब निर्वाणा मोक्ष मिलता था, वो आपको एक टैबलेट खाने से मिल जाता है मोक्ष। एक्चुअली फील निर्वाणा व्हेन यू, आई मीन यू कैन आस्क एनीवन जो ड्रिंक्स करते हैं या ड्रग्स लेते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट they reach that state of nirvana. They really feel high, extreme state of high they feel. But next day क्या होता है, जैसी दवाई का असर कम हुआ, एकदम से they hit rock bottom. इतना डिप्रेशन फील होता है। तो इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है। हम इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे, इंस्टेंट स्टेट ऑफ हाई के पीछे हम जाएंगे, जो आज जा रहे हैं लोग, तो इसका रिजल्ट डिप्रेशन के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में योग कितना लाभदायक है? तो योग के अंदर हम एक सिस्टम एक फॉलो करते हैं, यानी कि जो सिस्टम जो आपको स्टेट ऑफ हाई ड्रग्स खाने से मिला, वो स्टेट ऑफ हाई आपको ध्यान से मिल सकता है। पर उसके भी स्टेप्स होते हैं, यानी इट्स अ कंटिन्यूस स्टेप। यानी कि आपको, आप आज योग स्टार्ट करो, आपको कल ही आपको हैप्पीनेस मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, आपको लगातार आपको करना पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। योगासनास हो गए, प्राणायाम हो गए, ये सब चीज़ें जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखें कुछ टाइम बाद आपको वो जो हैप्पीनेस होगी, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैप्पीनेस होगी, जो आपको लंबा हैप्पीनेस देगी वो। और इसमें शॉर्टकट नहीं है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ आजकल कई बार कुछ जगह पे बोल देते हैं, आप किसी आश्रम वगैरह में जाओ, कुछ जगहों पे सीधा आपको ध्यान में बिठा देते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि अब लोगों को इंस्टेंट हैप्पीनेस चाहिए, इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन चाहिए। इंस्टेंट आपको डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो लोग आपको सीधा ध्यान के अंदर बिठा देंगे। वो भी नहीं है। ऋषि पतंजलि का एक सिस्टम है, आपका आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, आपको सिस्टम फॉलो करने पड़ेंगे, ये नियम, तब आपको वो स्टेट ऑफ परमानेंट हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैप्पीनेस मिल पाएगी। जी, आप सभी से बातचीत जारी रखेंगे। इतने में हम दर्शकों को ये भी बता दें कि आप भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। आपके सुझाव हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइंस खुले हुए हैं और हमारा फ़ोन नंबर है 011-2309-7532 011-2309-7532। आप हमें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब मैं, ऑडियंस हमारी यहाँ है और ऑडियंस से कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। जैसे अभी शिखर जी ने कहा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, यहाँ पे यंग ऑडियंस है। आप सब फेसबुक यूज़ करते हैं, आप सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कारण आप किसी पीयर प्रेशर में आते हैं, जो आगे जाकर कहीं टेंशन या फिर लॉन्ग रन में हो सकता है डिप्रेशन की ओर एक रास्ता ले जा रहा हो? आपसे जानना चाहूंगी सुमैया। मैम, मैंने कभी इतना ध्यान तो नहीं दिया, बट मेरे साथ अभी कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ फेसबुक। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो डिप्रेशन है, ये आजकल मेल की जगह फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो फीमेल में इतना ज़्यादा डिप्रेशन देखने को मिल रहा है आज की जनरेशन में, तो आगे जाके तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा जी। तो इसका क्या रीज़न है, मैं ये जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर निमिषा, आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों से बात करती हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या कारण है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है? जी, पहले तो मैं ये जो हमारी अभी बात चल रही थी उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन या कोई भी जो इमोशनल डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक स्पेक्ट्रम में होते हैं। तो एक तरफ उसमें आप नॉर्मल सैडनेस ले सकते हैं कि आपका मूड खराब हो गया जैसे कहते हैं, एक तरफ बहुत ही सिवियर डिप्रेशन जहां आपको सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। तो जब हम ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं जो किसी के रिएक्शन, कुछ हुआ जैसे अभी शिखर बता रहे थे और आपका रिएक्शन हुआ और कुछ देर बाद कुछ और हुआ और आप ठीक हो गए, दैट इज नॉट रियली डिप्रेशन, दैट इज जस्ट नॉर्मल सैडनेस, एवरीडे चेंजिंग इन मूड। बट डिप्रेशन तब है जब वो काफ़ी 2 हफ्ते तक, और उसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो डायग्नोसिस में यूज़ किए जाते हैं, तो जब तक वो फुलफिल नहीं होते और इंसान की लाइफ वो कई एस्पेक्ट्स में जैसे जॉब, पर्सनल सिनेरियो, सब जगह इफेक्ट कर रहा होता है, तभी हम उसे कहते हैं कि वो डिप्रेशन या डिसऑर्डर बन गया है। जहाँ तक इनका सवाल है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि फेसबुक और जो ये सारे सोशल मीडिया है, जैसे शिखर ने बताया, ये बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग हैं और कुछ भी नेगेटिव हुआ तो आप डाउनग्रेड हो जाते हैं, तो आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहता है।
और जहाँ तक डिप्रेशन के स्टैटिस्टिक्स की बात है, रिसर्च जो बताती है कि हाँ ये लेडीज़ विमेन में ज़्यादा पाया जाता है। इसका एग्जैक्टली क्या रीज़न है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बट साइकोलॉजिकल एंगल से अगर आप देखें तो रिसर्च बताती है कि जो विमेन हैं, जो लेडीज़ हैं, दे आर प्रोन टू इमोशन फोकस्ड कोपिंग, विच बेसिकली मीन्स कि आपके लाइफ में कोई भी तकलीफ आई या कोई नेगेटिव इवेंट हुआ तो आप बातों के द्वारा या उसके बारे में सोच के आप शेयर करके उससे डील करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ध्यान और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम के ऊपर केंद्रित हो जाता है और इवन आपके जो आसपास के लोग हैं उन्हें लगता रहता है कि ये हमेशा नेगेटिव बातें करती है, पुल डाउन है। ऑन द रिवर्स साइड जो मेल हैं या मेन हैं, दे आर सेड टू बी मोर प्रॉब्लम फोकस्ड कोपर्स, कि भाई कुछ नेगेटिव हुआ तो उसका सोल्यूशन निकाल लिया या उसके बारे में ना सोच के आगे बढ़ गए, तो इसलिए उनका ज़्यादा पता नहीं चलता है। डेफिनेटली विमेन में भी हो सकता है, मैम बता सकते हैं कुछ हार्मोनल रीजंस या केमिकल रीजंस की वजह से। एक्चुअली although why is it more now, maybe because of awareness, but yes ki woman has lot of episodes. I mean in a period of lifetime there are a lot of places where hormones go all over the place. तो जैसे पेरीमेंस्ट्रुअल है, प्रीमेंस्ट्रुअल है, पेरीमेंस्ट्रुअल, पोस्टमेंस्ट्रुअल, प्रेगनेंसी तो भरे पड़े, पेरी प्रेगनेंसी, postpartum, it is a known thing, and especially after menopause again, premenopausal and menopausal and postmenopausal, जिसमें hormones are all very wholly imbalanced. तो इसी में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये वो सारे चीजें तो हो गया, बट व्हाई इज इट मोर नाउ? उसमें जो what you very rightfully said and what he's so beautifully projected, that a changing lifestyle. So I think we are all in general dealing with more stress, more multitasking. So in general it's a competitive world, बच्चों से लेके बड़ों तक. So there is more multitasking, and probably women, we have a traditional thing and we also have to deal with the changing world, universe. तो probably multitasking ज़्यादा इन पे हो रहा है. So the transition and getting into it probably is, we are also becoming more aware. इसीलिए probably statistics are going up. But yes, like almost all diseases, women have have been given now specific focus. Like stroke in women separate आ रही है. So that's how I guess depression का भी है. And maybe राजेश जी, इस बीच राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. तो डॉक्टर राजेश, आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी हम विमेन में डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है ये भी एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा हम देखते हैं इसे. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, आपने सही कहा. जैसे जो चर्चा हो रही है कि वुमेन में क्यों ज़्यादा होता है, पहली बात तो ये है कि 2 times ज़्यादा होता है, और ये तो वर्ल्ड ओवर आंकड़े हैं इस चीज़ के, हमारे देश में भी हैं. और जो ये तो है ही, लेकिन जो गंभीर बात ये है कि जब जो हेल्प सीकिंग है वो उल्टा है, मतलब मेन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वुमेन. तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको प्रॉब्लम है मगर वो हेल्प नहीं ले रही हैं, और जो ट्रीटमेंट में नहीं है. वो चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत, और ये मानना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी महिला है, क्योंकि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है. हम तो ये मानते हैं कि महिला एक परिवार को संभालती है, क्योंकि महिला की वजह से इवन बच्चों का जो परवरिश है, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी संतुलित रहता है. तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये, क्योंकि महिला की मेंटल हेल्थ सही होना, खासकर डिप्रेशन को सही होना बहुत ज़रूरी है. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि कारण क्या है. देखिए, कारण बिल्कुल सही, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो अपने आप में एक इशू है पूरा, जैसे पोस्टपार्टम की चर्चा की, जो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड या डिलीवरी के बाद जो है. और मैं ये बताना चाहूँगा कि विदेशों में तो इसके आंकड़े जो पोस्टपार्टम है, जो पोस्टपार्टम ब्लूज एडजस्टमेंट, वो तो कहते हैं 50% होता है. हर 2 में से 1 महिला को ये प्रॉब्लम होगी. हालांकि उसकी वजह वो है कि हमारा समाज जो है, हम जैसे किसी भी महिला की डिलीवरी होती है तो परिवार पूरा साथ आ जाता है, उसकी हेल्प करता है. विदेशों में ऐसा नहीं है. तो ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर हैं, क्योंकि ये महिला हमारे देश में अभी भी, क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड है, तो वो है. बट बात यह है कि पोस्टपार्टम एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, जिसको पोस्टपार्टम ब्लूज कहते हैं, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं. एक और जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चर्चा कर रहे हैं महिलाओं में क्यों होता है, एक जो चीज़ है वो विक्टिमाइजेशन. देखिए, समाज है मेल डोमिनेंट है, ये पुरुष प्रधान समाज है. तो जो विक्टिमाइजेशन है, चाहे वो अब्यूज़ है, चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है,
जो फीमेल में गर्ल्स में ज़्यादा होता है, हम ये मानते हैं इस बात को, और इसका जो लिंक है डोमेस्टिक वायलेंस से भी है। तो ये भी एक जो इम्पॉर्टेंट है समझना कि परिवार में है वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो एक जो कुंठित जो महिला रहती है जिसको आउटलेट नहीं है और उसको बहुत सारा उसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, तो समझ सकते हैं कि उसका स्ट्रेस कितना ज़्यादा है। तो ये सब कारण है जो देखा गया है खासकर हमारे देश में। लेकिन पोस्टमार्टम के कारण वही है जैसे जो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रीटेबल है। मतलब इसमें थोड़ा ध्यान ये रखना होता है कि भाई बच्चे को जो लैक्टेशन चल रहा है तो दवाइयाँ थोड़ा अवॉइड करते हैं, देखते हैं कि और क्या ट्रीटमेंट्स हो, तो दवाइयाँ ही इलाज नहीं है, उसके अलावा भी इसका ट्रीटमेंट होता है। इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं, वीना जी मुंबई से। वीना जी अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैम नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि ये जो आज का प्रश्न है ये फैमिली रिलेटेड ज्यादा है सर। ये हमारे घर में से ही शुरू होता है टेंशन, मतलब डिप्रेशन का जो बच्चों पे इसका बहुत ही असर पड़ता है और बच्चे आगे जाके उसका गलत फायदा भी उठाते हैं सर। और हम लोग बच्चों को इसमें सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि बच्चों को डांट भी नहीं सकते, उनको प्यार से कहो तो भी मतलब थोड़ा सुनने में भी उनको डिफिकल्टी होती है। और हम लोग घर में पेरेंट्स जो होते हैं मतलब पेरेंट्स है, पूरा घर परिवार जो है वो उनके अंदर डिप्रेशन होता है तो वो बच्चों पे उनका असर बहुत, वो ध्यान से देखते हैं, उनकी एक्टिविटी बहुत ऐसे मतलब गौर से देखते हैं, वो मम्मी पापा किस तरह से बात कर रहे हैं बड़ों से छोटों से, या कोई घर में आया है मेहमान या मतलब कुछ भी ऐसे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इसके ऊपर हमें बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहिए सर, कि ये घर से ही पहले शुरुआत होती है, घर से ही फिर ये बाहर मोहल्ले तक और फिर गांव तक, शहर तक ऐसे पहुंचती है सर ये डिप्रेशन की बीमारी। जी बिल्कुल वीना जी, जैसे वीना जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं घर से, अगर घर में कोई भी डिप्रेस्ड है या माता पिता का अपने बच्चों के साथ जो मतलब संपर्क है या जो संबंध है अगर वो बहुत अच्छे नहीं हैं, तब भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन की शुरुआत होती है। इसमें एक और पॉइंट मैं भी अपनी तरफ से जोड़ना चाहती हूँ कि कई बार हम ये देखते हैं कि मान लीजिए एक परिवार में अगर एक मतलब डिप्रेशन से ग्रसित कोई भी एक सदस्य है तो उसके साथ जितने लोग हैं वो भी उस नेगेटिविटी को हर दिन हर पल झेल रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका ये भी असर हो सकता है कि वो खुद भी नेगेटिव होते जाएं। तो ऐसे में परिवार की क्या भूमिका है, किस तरह से परिवार पहचाने कि डिप्रेशन है और किस तरह से उसके साथ डील करे? बहुत सही कहा, और अक्सर हम ये कहते हैं और जो बहुत ज़रूरी है सब को बताना कि जो शारीरिक बीमारी है वो व्यक्ति की बीमारी है और जो मानसिक बीमारी है वो परिवार की बीमारी है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, चाहे वो डिप्रेशन है या साइकोसिस है या कोई भी बीमारी है जिसको हम सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, उसका अफेक्ट पूरे परिवार पे होता है। और ये मानना जरूरी, जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे पेट में दर्द है तो मैं अस्पताल जाऊंगा, ट्रीटमेंट करा लूंगा, तो बाकी लोग मुझे सिर्फ अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन जो मानसिक बीमारियां हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि मुझे इसको घर में ही छोड़ना है, घर में होगा तो कौन देखभाल करेगा, बाहर जाएगा तो परेशान करेगा, बाहर में ये होगा, दवाई कब दी जाएगी, तो समझ सकते हैं कि इसका जो बोझ है। पर और देखा गया है, एक शब्द हम यूज करते हैं केयर गिवर बर्डन, जो मानसिक बीमारियों का बहुत ज्यादा है। हालांकि डिमेंशिया भी है और भी चीजें हैं जिस पे हम चर्चा नहीं करते, हम अक्सर जो चर्चा करते हैं मरीज को लेकर ही करते हैं, लेकिन केयर गिवर बर्डन बहुत ज्यादा होता है और इसको समझना। और कई व्यक्तियों में जो एक व्यक्ति की देखभाल कर रहे होते हैं उनको भी डिप्रेशन होता है, आप समझ सकते हैं, बर्नआउट हो जाता है, क्योंकि वो सालों साल उनकी देखभाल करते हैं। जो व्यक्ति जो उनको समझ भी नहीं पा रहा है, जो मानसिक रोग से ग्रसित है, तो कहने का मतलब है ये बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि ये परिवार की समस्या है और उसको। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसको समझा जा चुका है कि केयर गिवर बर्डन बहुत होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है। और जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मेरी क्लिनिक में कोई व्यक्ति कोई लेके आता है तो मैं मरीज से ज्यादा जो उसको साथ लाया है उससे ज्यादा बात करता हूँ, उसको बूस्ट अप करने की कोशिश करता हूँ, उसको मैं सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मरीज का जो सक्सेस है जो वो उस पर डिपेंड करता है। हाँ। और उसका सही होना मानसिक रूप से, क्योंकि दवा भी वो दे रहा है, डॉक्टर के पास भी वो लेके आ रहा है, तो समझ सकते हैं कि उसका मानसिक स्थिति ठीक होना कितना जरूरी है। वो खुद नहीं है बल्कि वो उस मरीज का भी ध्यान रख रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। परिवार और खासकर बच्चों को लेके हमें समझना चाहिए कि जो परिवार का इफेक्ट बहुत होता है बच्चों पे। उसका कारण यह है कि जैसे देशों में विदेशों में
पेरेंटिंग स्किल्स की क्लासेस होती हैं, वहाँ बताया जाता है कि आपको कैसे पेरेंटिंग करनी है, कैसे करना है, लेकिन हमारे देश में अभी नहीं है, लेकिन शुरू हो रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मतलब एक वर्किंग पहले घर में ही रहती थी महिलाएं, अब वर्किंग वुमेन है, बहुत ज़्यादा वक्त हम नहीं दे पाते हैं, हमारी अपनी बहुत सारी एम्बिशंस होती हैं, तो बहुत सारे कारण हैं। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार का रोल बहुत अहम है। पहले पहचाने, किसी भी देखिए पहचानने के लिए अगर डिप्रेशन है, बिल्कुल सही है कि 2 हफ्ते से ज्यादा उदासी है, और ये बहुत गलत धारणा है कि डिप्रेशन के लिए उदासी होना जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि डिप्रेशन का डायग्नोसिस बिना उदासी के भी हो सकता है। कहने का मतलब 3 लक्षण इंपॉर्टेंट है। उदासी तो एक हो गया, दूसरा आपका काम में मन नहीं लगना, जिसको एनिडोनिया कहते हैं। अगर आप टीवी देख रहे हैं, आपने बंद कर दिया है, देख भी रहे हैं तो एंजॉय नहीं कर रहे आप। और तीसरी चीज लैक ऑफ एनर्जी और फटीगेबिलिटी या टायर्डनेस। अगर इसमें से 3 में से 2 होना चाहिए। तो अगर किसी को उदासी नहीं है तो भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। अगर उसको काम में इंटरेस्ट नहीं हो रहा या उसको थकावट हो रही है तो भी डायग्नोसिस होता है। और ये भी मानना जरूरी है कि हमारे देश में कई व्यक्ति जब आते हैं, ये भी हमने जो शोध में देखा है WHO की स्टडी में, हमारे देश में कई व्यक्ति इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं होते, वो कहेंगे मुझे मेरा मन उदास है, वो दूसरे ढंग से कहते हैं मेरा मन बुझा है, मेरा काम में मन नहीं लग रहा। क्योंकि उदासीनता ये मोर ऑफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत कहें कि मेरा, क्योंकि हम अपने इमोशंस को कहना नहीं चाहते। ये हमारे अंदर है कि हम, नहीं तो लोग समझेंगे कि हम ये व्यक्ति जो कमजोर है, तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते। तो कहने का मतलब है कि ये सिम्टम्स हैं, 2 हफ्ते ज्यादा हैं। और बहुत ही अहम बात है, क्योंकि ये माना नॉर्मल सैडनेस भी होती है जो कि डिसअपॉइंटमेंट लॉसेस के साथ होती है, लेकिन वो थोड़े वक्त के लिए होती है। डिसफंक्शन होना बहुत जरूरी है। डिसफंक्शन, डिसेबिलिटी और डिस्ट्रेस, ये होना जरूरी है। अगर हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करें, परिवार में किसी को भी हो, हम आराम से पहचान सकते हैं। 2 हफ्ते ज्यादा हो, उदास है और काम पे नहीं जा रहा, तो हम कह सकते हैं कि उसको उदासीनता की बीमारी है। इस विषय में हम और बात करेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, राजेश जी गाजियाबाद से, सुन लेते हैं फिर और बात। हेलो एवरीवन। हेलो। काफी मैं न्यूज में देखता रहता हूँ कि जैसे हमारे जो फार्मर्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो इनका एवरी अदर डे वी हियर के वो सुसाइड वगैरह काफी कर रहे हैं, मे बी फॉर डिफरेंट रीजंस। तो ऐसा क्या है कि जैसे रूरल एरियाज में जहाँ पे इतना हाई मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा मतलब क्या कर सकते हैं? जैसे किसानों का जैसे लाइफस्टाइल भी नॉर्मल रहता है, उनका खाना पीना भी अच्छा है, लेकिन फिर भी उनमें काफी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या मतलब उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ताकि उनकी थोड़ी लाइफ में स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम रहे? He's talking about farmers' suicide, isn't it? Farmers' suicide, which is, and that is because of a reason. वहाँ पे everything is not honky dory. They have loans they can't repay. There is a drought, and there is an obvious pathology there. Certainly, it's important, and one should look at how it can be benefited. Probably that is beyond disease. It is several other factors which are included into that aspect. But there was one I wanted to add on to what Professor Sagar was saying about कि लोग ये नहीं आते कि मैं depressed हूँ. And the other thing which is extremely important, because they come with other complaints. Second is जो family role and family caregivers role भी यही होता है. I'll give you an example. बहुत बार लेकिन there's a couple, husband लेकर आते हैं कि wife को बहुत headache हो रहा है. 20 साल से headache है. इतना तड़पते हैं कि कपड़े बांध के आते हैं. द होल लाइफ इज रिवॉल्विंग अराउंड दैट हेडेक बिजनेस. और 10-15 MRs करा लिया. अब यही होता है, कोई डॉक्टर के पे दूसरे डॉक्टर पे चले गए, तीसरी डॉक्टर, एवरी डॉक्टर एडवाइजर सम टेस्ट हो गया. एंड व्हेन वी टेल कि भाई ये तो यू हैव टू लुक इनटू इट, खाली मेडिसिन दवाई स्पेशली पेन किलर्स लेंगे तो आप एडिक्ट हो जाओगे, एनालिसिक अब्यूज हेडेक्स हो जाएंगे. यू नीड प्रोफेशनल हेल्प. लेट मी रेफर यू. So you go to Professor Sagar, go to somewhere, you need professional help. Maybe CBT, maybe something else, but you go. लोग तैयार नहीं होते वो सुनने के लिए. They immediately think क्यों? मुझे तो इतना दर्द है, मेरी जिस्म की प्रॉब्लम है, you're telling me it is in my mind. So that acceptance and be open to a suggestion कि ये कुछ और है, तो when you go for a professional, you will be cured. So you should not wallow around the same belief कि ये डिप्रेशन तो नहीं हो सकता.
So that acceptance and awareness should also Actually, be इससे शायद इसके related, पीछे एक कारण है सोशल स्टिग्मा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास गए या साइकियाट्रिस्ट के पास गए तो हम पागल हैं। तो वो एक क्रेजी होना या एक पागलपन से जो जुड़ाव इसका हो गया है, शायद ये कारण है डॉक्टर निमिषा। या आपने सही कहा, स्टिग्मा बहुत है, अभी भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट मेंटल इलनेस को लेके क्योंकि वो दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस की जाती है, और जो बहुत आसपास के करीबी लोग हैं वही उसके फर्स्ट साइंस देख सकते हैं, और उसको डिस्कस करना, उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत मुश्किल चैलेंजिंग काम है, तो दूसरे लोग ज़्यादातर गलत समझ लेते हैं, तो स्टिग्मा इससे है, और साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का भी अपना स्टिग्मा है। और फैमिली का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले वही लोग मे बी नोटिस करते हैं कि फर्स्ट चेंजेस क्या हैं, कोपिंग एबिलिटी भी अपनी फैमिली से ही आती है, स्टिग्मा भी फैमिली से ही शुरू होता है। आपके खुद के पेरेंट्स और भाई बहन आपकी कंडीशन नहीं समझ रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, या ओवर आपको और स्ट्रेस कर दे रहे हैं, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ये जो एक कमेंट में, ये जो फार्मर सुसाइड है या कोई भी डिप्रेशन को लेके, तो बहुत एक हमारे सीबीटी में टर्म यूज होता है साइको एजुकेशन, कि एक अवेयरनेस फैलाना और साइकोलॉजिकल और जो माइंड बॉडी कनेक्शन है उसके बारे में एजुकेशन फैलाना, स्प्रेड करना, इवन विलेजेस में, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में, बच्चों में, हर जगह बहुत ज़रूरी है कि इट बिकम्स पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। टॉकिंग, लेट्स टॉक, so let's talk doesn't have to be a special thing, it has to be an everyday daily affair and quality time within the family, जी, जो भी खत्म हो गया है अब। जी, इस विषय में और बात करेंगे, ऑडियंस के भी प्रश्न लेंगे, पर इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, डिम्पल दिल्ली से। डिम्पल, पूछिए अपना प्रश्न। डिम्पल, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। जी, अपना प्रश्न पूछें। मेरा सवाल शिखर जी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे 6 महीने पहले बहुत, हेलो, हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। जी जी, हम आपको मेरा सुन पा रहे हैं। सवाल शिखर जी से है। मेरे को 6 महीने पहले बहुत डिप्रेशन था, बहुत स्ट्रेस रहती थी, और फिर मेरे को किसी ने योगा करने के लिए बोला, तो मैंने 2 महीने योगा करा। मैंने सोचा मैं ठीक हो गई, बहुत अच्छा मुझे फील होने लगा, लेकिन जैसे ही योगा छोड़े हुए मुझे 1-1.5 महीने हुआ, मैं फिर से बैक टू डिप्रेशन पहुंच गई। तो मुझे शिखर जी से ये क्वेश्चन पूछना है, क्या योगा एक टेम्परेरी सोल्यूशन है या ये एडिक्शन है? या तो करते रहो तो आपका डिप्रेशन ठीक रहेगा, नहीं तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। देखिए, ये आपने बताया कि आपको स्ट्रेस में रहते थे, आपने 2-3 महीने करा योगा और आपको बेनिफिट फील हुआ। इनफैक्ट योगा के बारे में, एक फीमेल्स के बारे में जैसे बोलते हैं कि फीमेल्स को डबल स्ट्रेस रहता है या ज़्यादा वो रहता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है योगा के अंदर। आज से 50 साल पहले अगर आप देखेंगे योगा करते हुए पिक्चर्स में, तो सिर्फ आप देखेंगे कि मैन योगा करा करते थे, सिर्फ आदमी आपको योगा करते मिलेंगे। और आज आप जितने भी स्टूडियोज़ में जाएंगे, इनफैक्ट मेरा खुद का जब मैं क्लास लेता हूँ, सारा का सारा परसेंटेज सब फीमेल्स आ रही हैं, 80-90% फीमेल्स आती हैं इसके अंदर। तो ये आपने जो प्रश्न करा कि क्या एडिक्शन है या आपको हमेशा करना पड़ेगा, तो इसका सिर्फ जवाब ये है, देखिए, आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने जाते हैं, आपको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है, तब आप ये सवाल नहीं करते हैं कि क्या मेरे को लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। आपको शुगर के लिए इंसुलिन हार्मोन लगते हैं, तब आप ये नहीं बोलते ये क्या एडिक्शन है। तो ये तो एक लाइफस्टाइल का पार्ट है जिसको आप हमेशा कंटिन्यू रखोगे। जैसे आप खाना खाते हो अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ऐसी एक्सरसाइज हो गई, आपका योगा हो गया, ये भी एक आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है जो आपको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। जैसे आप जब तक आप खाना खाते हो अपने टिल द टाइम यू एंड योर लाइफ, ऐसे ही आपको एंड तक आपको किसी ना किसी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज हो गए, प्राणायाम्स हो गए, मेडिटेशन हो गए, ये आपको अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना ही पड़ेगा। और ये एडिक्शन नहीं है, ये तो आपका लाइफस्टाइल का पार्ट है। जैसे अच्छा खाना खाते हो वैसे आपका अच्छा योगा, मेडिटेशन, वे ऑफ लाइफ। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट एडिक्शन, इट्स नॉट मेडिकेशन, इट्स नॉट। ऑडियंस से एक प्रश्न ले लेते हैं। ऑडियंस में रजनी है और रजनी के परिवार की एक सदस्य हैं जो कि डिप्रेशन से प्रभावित हैं। तो रजनी, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो जैसा कहा गया था कि उदास होना ही डिप्रेशन की निशानी नहीं है, बच्चों में कैसे पहचाना जाए कि बच्चे भी डिप्रेशन का शिकार हैं, खासकर छोटे बच्चे। दूसरा, नेगेटिविटी बढ़ती है तो लोग अलग थलग हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ऐसा कोई ज़रिया नहीं है? जैसे मेरे परिवार के जिस सदस्य को था, उसे कहा गया कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शी इज़ हैप्पी है, उसकी शादी हो चुकी है। अब तो अलग थलग कर देना कहाँ तक सही है? 2 सवाल। नहीं, बहुत सही सवाल पूछा आपने, और खासकर बच्चों के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी यंग बच्चों के साथ काम करता हूँ।
देखिए बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन द सेंस कि वो हमारे देश की एक चौथाई हिस्सा हैं। हम समझ सकते हैं कि 40% से ज़्यादा हैं लेस देन 18 ईयर्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। सो और ये गलत धारणा है कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। अब जैसे हम बता सकते हैं कि क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि वुमेन में ज़्यादा है, गर्ल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन दिस इज़ आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी 12 साल की उम्र के बाद देखा गया, लेकिन उससे पहले बॉयज़ में ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चों में या एडोलेसेंट में जो डिप्रेशन है उसके थोड़े सिम्टम अलग हो सकते हैं। उनमें उदासी की बजाय उनमें चिड़चिड़ापन होगा, और अगर प्री प्यूबर्टी बॉयज़ हैं तो उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होंगी। वो कहना नहीं मानेगा, मतलब टेम्पर टैंट्रम्स होंगे, तो वो इस तरह के बिहेवियरल सिम्टम हो सकते हैं। और हमने देखा, जैसे हम जब शोध किया तो देखा कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है डिप्रेशन, जो यंग पॉपुलेशन स्कूल गोइंग में है, स्कूल एब्सेंटिज्म, मतलब स्कूल जाना वो बंद कर देते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और कभी कभी वैसे हम कहते हैं कि जो है नींद कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, वो ज़्यादा सोते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता है, और एक और भी तरह के सिम्टम। तो कहने का मतलब कुछ सिम्टम जैसे उदासी के बजाय इरिटेबिलिटी हो जाएगी उनको, और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, स्कूल से जाना बंद कर देते हैं, स्कूल से एक तरह का फोबिया हो जाता है क्योंकि लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, और ये देखा गया कि उनके परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप हो जाता है। देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है कि बच्चों में जो दो तरह की प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो है कि जो हम कहते हैं जो पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड होती है, मतलब पेरेंट्स को लगता है इसके तो परफॉर्मेंस कम हो गई है, गिरती जा रही है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पा रहा। एक तो वो है। दूसरी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कि ये कहना नहीं मानता, हम जो कहते हैं उसका उल्टा करता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम। अगर हम कहते हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, अगर वो रीसेंट फिनोमिना है, अगर वो पहले से ही है, तो हो सकता है उसको बाकी प्रॉब्लम हो जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो। अगर वो पहले वो ठीक था बच्चा, लेकिन अब गिर गई है परफॉर्मेंस, तो हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम हो उसको, हो सकता है कोई ऐसा स्ट्रेस हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो जिसमें एंजाइटी भी हो सकता है या डिप्रेशन भी हो सकता है, और वो चुपचाप रहता है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अक्सर ये है कि स्ट्रेस भी होता है परिवार में, मान लीजिए हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में थोड़ा अनबन रहती हो, तो उसका भी इफेक्ट बच्चों पे होता है। ये बहुत ज़रूरी है बताना कि हम ये सोच लेते हैं कि बच्चों पे इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चों पे हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और बच्चों में बड़ी खास बात ये, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा लेकिन बच्चे जो हैं डिपेंडेंट होते हैं, वो अपने आप नहीं जा सकते अस्पताल, वो पेरेंट्स के थ्रू ही जा पाएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनकी मन स्थिति को समझना। पेरेंट्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉब्लम है तो हेल्प के लिए जाएं, और ये बहुत ज़रूरी बात है। और लेकिन ये प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है। और एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूर बताना चाहेंगे, कि बच्चों का जो फेज़ बड़ा क्रूशियल फेज़ होता है लाइफ का, उस पीरियड में वो बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं। वो एक सोशल स्किल डेवलप करते हैं, एक एकेडमिक स्किल्स हैं, पढ़ते लिखते हैं, उस पर डिपेंडेंट होता है क्या वो जॉब करेंगे, क्या होगा, एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं। उस वक्त में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है काफ़ी बाद तक भी रह सकता है, तो इसीलिए बच्चों की प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है और इसको समझना है। और लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम समझ लें, जल्दी ट्रीटमेंट कराएं तो बहुत अच्छे परिणाम भी हैं उसके, और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन बड़ा क्रूशियल फेज़ है, उसमें ये देखा गया है कि अगर शारीरिक के बजाय मानसिक बीमारी उस वक्त में हो जाए तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को एक बुलिंग भी बहुत बड़ा इशू है जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है। स्कूलों में बड़े जो बच्चे हैं जो उनको तंग करते हैं, या टीचर उनको थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, तो ये भी एक बच्चे चूंकि कह नहीं पाते तो वो चीज़ अंदर ही अंदर रहती है, और कभी कभी उसके परिणाम बड़े खराब होते हैं। इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, शिवानी लखनऊ से। शिवानी जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्कार जी। मेरा सवाल ये है कि अत्यधिक गुस्सा आना, क्या ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है? अत्यधिक गुस्सा आना, क्या ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है? बिल्कुल सही, क्योंकि जो शोध है, जो रिसर्च है, उसमें देखा है हमारे देश में भी कभी कभी बहुत ही अर्लीस्ट सिम्टम होता है, एंगर अटैक्स, एंगर एपिसोड मे बी वन ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये भी इमोशन से जुड़ा हुआ है। एंगर मीन्स इमोशन, एग्रेशन मीन्स आप बिहेवियर, है ना। तो अगर कोई भी हमें अक्सर ये होता है, जैसे हम तो बच्चों एडोलेसेंट के बारे में कह रहे थे, लेकिन व्यक्ति एडल्ट्स को भी कभी कभी एंगर होना या मन चिड़चिड़ा रहना,
ये भी एक अर्लियर सिम्टम्स हो सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। या एक और जो आपको देखने को मिलता है वो है सुसाइडल टेंडेंसीज। इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय भी हमारे पास कम है और कई सारी बातें हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे पहचाने, और अगर हम किसी में देख रहे हैं कि सुसाइडल टेंडेंसी है तो उसकी मदद कैसे की जाए? पद्मा जी, आप कुछ कहना चाहें? This suicidal, I will tell you the neurological aspect. Okay. Again, coming back to the same thing कि जो भी behavioral, whatever it is, जो sudden behavioral change, sudden psychological difference, उसको जो neuro behavioral syndromes में we have to look at neurological diseases also. But जब आप suicidal tendencies जो कह रहे हैं, वो इवन नॉर्मल डिप्रेशन के अंदर वो नहीं है, दैट बिकम्स अ मेजर डिप्रेशन. डॉक्टर सागर विल फर्दर इलैबोरेट ऑन दिस. दैट इज नॉट समथिंग दैट कॉमनली हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, दैट सुसाइडल टेंडेंसी इज कम्स अंडर, इनफैक्ट एक्चुअली आई थिंक इवन DSM उसमें भी इट्स अंडर अ मेजर डिप्रेशन थिंग. यू वांट टू इलैबोरेट ऑन दैट? नो दैट्स ट्रू. बिल्कुल सही कहा कि देखिए जब हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को कोई देखिए थॉट भी आता है तो वो बड़ा सीरियस इश्यू है, क्योंकि सुसाइड के कोई भी थॉट को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरियस भी हो सकता है, चाहे वो कभी एक आध बार यूं ही हाँ, तो डिपेंड करता है. लेकिन क्योंकि उसको समझना जरूरी, इसलिए असेसमेंट करना भी जरूरी है. और लेकिन जैसा आपने कहा कि कैसे पहचाने, तो कुछ चीजें जो है, इसीलिए परिवार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए सुसाइड की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने से पहले उसको एक्सप्रेस जरूर करता है. ये देखा गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि वो किसी न किसी रूप में एक्सप्रेस करेगा. अच्छा, वो क्या होगा? करने से पहले या तो वो डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर पास हो सकता है वो बता ना पाए लेकिन कंसल्ट करेगा, परिवार को किसी न किसी रूप में बताएगा या अपने दोस्तों को बताएगा. लेकिन हमारे ऊपर होता है, जो दोस्त हैं या बाकी लोग वो समझ नहीं पाते, उसको लगता है शायद ये ऐसे ही कह रहा है या ये शायद कोई और वजह होगी, स्ट्रेस में होगा शायद इसलिए ऐसा कह रहा है. कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल पहचानी जा सकती हैं, या तो सडन चेंज ऑफ बिहेवियर हमें लगता है ये तो सडन चेंज हो गया है. दूसरा कुछ हाँ या सो उसमें अगर कोई कोशिश की है, मान लीजिए उसने कोई ऐसी चीज जैसे पेस्टिसाइड है खरीदा है या कुछ ऐसी चीज वो करने के लिए लिया है, तो आप समझ सकते हैं. या किसने एकदम ही विल अपनी कर दी है अपने परिवार के मतलब उनके लिए कर दी है, या फैमिली हिस्ट्री या तो हाँ, तो उसमें ये है कि अगर देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को परिवार में किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो वो तो रिस्क फैक्टर होता ही है. या सबसे बड़ी जो चीज, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे फार्मर सुसाइड के बारे में भी, ये संबंधित उससे भी है. ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को स्ट्रेस होगा तभी उसको डिप्रेशन होगा या सुसाइड होगा. कुछ चीजें एंडोजिनस भी होती हैं, शारीरिक होती हैं. हम ये मानते हैं कि कई बार पेरेंट्स आते हैं कहते नहीं ये तो सबसे अच्छे स्कूल में जाता है, हम सबसे अच्छा खाना खिलाते हैं, सब कुछ अच्छे कपड़े पहनाते हैं, फिर ये डिप्रेस क्यों है? कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशन के लिए जरूरी नहीं कि स्ट्रेस हो या सब चीजें गलत हो तभी होगा डिप्रेशन. कुछ चीजें अंदरूनी भी होती हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं तो जिसके ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है, तो उनको भी हो सकता है. तो उसी तरह से सुसाइड में भी पहली चीज समझना ये है कि उसको सीरियसली लें, और अगर कोई चेंज ऑफ बिहेवियर है या ऐसी कोई सीरियस चीज हो रही है, नोट लिखा है उसने या अपनी विल चेंज कर दी है या फैमिली में है या कुछ सब्सटेंस लेने लगा, जैसे अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने लगा है या ड्रग्स लेने लगा है, या ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं उसके, और यंग लोग हैं तो ये सब रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हैं. तो अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और इसको रोका जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है. चलते चलते एक और चीज ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर कि जब भी आपको हर आदमी, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर हर आदमी किसी न कभी लो फेजेस से गुजरता है, बिल्कुल डिप्रेशन की स्टेज से गुजरता है. इसके अंदर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, फैमिली का सपोर्ट. इसमें अनकंडीशनल सपोर्ट, नॉन जजमेंटल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉन जजमेंटल अगर आपने डिप्रेशन में आप उसको समझा भी रहे हो पर बोल भी रहे हो कि मैंने तो तेरे को समझाया था ना, मैंने बोला था ना, अगर आप कहीं ना कहीं उसको जज कर रहे हो तो आपका सपोर्ट किसी काम का नहीं है. नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल सपोर्ट एट दैट लोएस्ट मोमेंट, वो बहुत ज़रूरी है. That is true. And can I add one very interesting thing जो Shekhar was also saying, your lifestyle. अभी तो आजकल तो ये भी आया है कि जो what you eat is related to depression. So there is something called a gut microbiome. So gut is the stomach, what you eat. So उसमें जो microbiome are the bacteria जो resident है, this is being connected to almost all diseases and also now to depression.
कहा भी गया है जैसा अन्न वैसा मन, तो जो हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं शायद हमारे मन को प्रभावित करता ही है। चलते चलते एक बहुत ज़रूरी अहम सवाल जो शायद व्यूअर्स के दिमाग में भी जहन में भी चल रहा होगा कि अगर ऐसा कुछ है, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे क्योंकि समय वाकई बहुत कम है, क्या हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं? अभी देखा जाए तो मेंटल हेल्थ बिल भी पास हुआ है जो कि एक माइलस्टोन है एक तरह से देखा जाए तो। इसके अलावा क्या हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन से प्रभावित हैं? नहीं, बिल्कुल काफ़ी जगह अवेलेबल है, लेकिन हम ये कहेंगे वो मेजर सिटीज़ में ही है, मतलब कुछ मेट्रोपॉलिटन में ही है, लेकिन हमें उससे बहुत ज़्यादा आगे जाना है। हालांकि सरकार इसके पे सोच रही है कि कैसे मेडिकल कॉलेज से और हर जगह पे हेल्पलाइंस हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि हम सब समाज का एक मेंटली इल के प्रति जो एटीट्यूड है उसको बदलना होगा। जो एक नेगेटिव एटीट्यूड है कि ये उसको हम इवन जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है, बड़ा नेगेटिव वे से दिखाया जाता है, मजाक बनाते हैं, उनको एम्बरेस करते हैं, तो हमें उसको बदलना होगा। अगर हम उसको बदल देंगे तो व्यक्ति, स्टिग्मा क्यों है? स्टिग्मा इसलिए है कि लोग मजाक बनाते हैं। अगर स्टिग्मा खत्म हो जाएगा तो हो सकता है वो व्यक्ति आकर कहे नहीं मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका ट्रीटमेंट चाहिए, तो हमें वो एटीट्यूड बदलना होगा। और अगर वो ऐसा हो गया तो हम काफी मदद कर सकते हैं, लोग अपने आप आगे आएंगे। और हेल्पलाइंस हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। लोग व्यक्ति जो पहले हमें उसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें बताना है, ये सब अक्सर सुविधाएं होती है लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता। मालूम भी होता है तो लोग स्टिग्मा की वजह से जाते नहीं है। तो हर पॉइंट पे बैरियर्स हैं, हमें वो सब दूर करने हैं। और आने वाले वक्त में लगता है कि आज जैसे हेल्थ डे है, I think this barrier should be even with the doctors. Because even clinicians do this mistake. कि अरे हम आपका CT नॉर्मल है, MR नॉर्मल है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। See that itself is being judgmental. पर समाज बदल रहा है, बड़ी सच्चाई है कि समाज बदल रहा है, ज्यादा एक्सेप्टेबल हो रहा है, और जो एक स्टिग्मा एसोसिएटेड था कहीं ना कहीं उससे दूर हो रहा है। अगर हम बॉलीवुड की फिल्में देखें तो कुछ ऐसी फिल्में भी आई हैं जो इसकी ओर इशारा करती हैं। कई सेलिब्रिटीज खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने डिप्रेशन के बारे में बात की है, जो संकेत है कि हाँ समाज बदल रहा है और चीजें और बेहतर हो रही हैं। जैसे हमने कहा कि समाज बदल रहा है, चीज़ें और बेहतर हो रही हैं, और ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी अपनी तरीके से अपने आसपास रहने वालों के लिए एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाएं और किसी न किसी तरह से उन्हें डिप्रेशन में जाने से बचाएं। और अगर कोई चला ही गया है तो उसे निकालें। हम जजमेंटल होना बंद करें, देखें कि अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो शायद कहीं ना कहीं वो उसके पर्सनालिटी का एक कैरेक्टर या उसकी पर्सनालिटी की शायद कोई नेगेटिव कोई कमी रही होगी। अगर हम किसी जंगल में जाते हैं तो हर पेड़ एक समान नहीं होता, ठीक उसी तरह से इंसान भी समान नहीं होते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो कल सुख था वो आज अगर दुख बन गया है तो आज का दुख भी कल सुख बन जाएगा। मे बी वी आर एट द एंड ऑफ ए टनल। चलते चलते बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, शायद हमारा जो उसको अटैक करने का एक पॉजिटिव नोट है कुछ इस तरह से होना चाहिए कि शाख से जुदा हो जाएं हम वो पत्ते नहीं, शाख से जुदा हो जाएं हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कहो औकात में रहें। चलते चलते आप सबको और इस खूबसूरत ऑडियंस के लिए जोरदार तालियां। चलते चलते बस यही कहूंगी कि आप सब का जीवन मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार।